I see her in that long shaded lane, creeping up and down. ये आगे से misprint है. I see her on that long road under the trees, creeping along. ओहो, ये तो पेज ही नहीं सही. ये वाला एक सेकंड. Creeping up and down, I see her in those dark grape arbors, creeping all around the garden. I see her on that long road under the trees, creeping along, and when a carriage comes and she hides under the blackberry vines. उससे वो फिगर, वो फीमेल फिगर, वो वोमेन हर जगह इसलिए नजर आती है बिकॉज हर वक्त उसके दिमाग में एक ही बात रहती है. और वो उसको न सिर्फ अपने रूम में नजर आती है बल्कि उसे अपने गार्डन में, वाइन लीव्स के पास, ऑर्चर्ड में, इवन जब वो कहती है कि वो साथ में स्ट्रीट पे कुछ लोग जब गुजर रहे होते हैं तो वो कुछ देर के लिए छुप जाती है, वो फिर सामने आ जाती है. I don't blame her a bit. It must be very humiliating to be caught creeping by daylight. लेकिन इसलिए भी मैं उसको ब्लेम नहीं करती कि इस तरह से रोशनी में कोई रेंग रहा हो, अगर कोई क्रीप कर रहा हो तो बहुत ह्यूमिलिएट होगा अगला बंदा. I always lock the door when I creep by daylight. अब वो खुद भी क्रीपिंग करने लगी है, सेम जैसे वो उसे फीमेल क्रीप करती हुई नजर आती है, वो खुद भी रेंगने लगी है क्योंकि उसे लगता है कि वो फीमेल जो वॉलपेपर के पीछे है वो भी क्योंकि फ्रीडम चाहती है, लिबर्टी चाहती है, तो ये भी लिबर्टी खुद, क्योंकि ये एक फ्रीडम जो है वो लैक ऑफ फ्रीडम का शिकार है, तो वो भी लिबर्टी चाह रही है उस जगह से. I can't do it at night for I know John would suspect something at once. And John is so queer now that I don't want to irritate him. I wish he would take another room. Besides, I don't want anybody to get that woman out at night but myself. I often wonder if I could see her out of all the windows at once. But turn as fast as I can only see out of one at one time. अब उसे हर विंडो से वो फीमेल नजर आती है, वो वोमेन, क्योंकि जब आपने अक्सर मूवीज में भी देखा होगा जब मेंटली कोई बंदा फ्रस्ट्रेटेड होता है तो उसे एक की बजाय वो चार चार इमेजेस नजर आने लगते हैं, तो उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है. And though I always see her, she may be able to creep faster than I can turn. I have watched her sometimes away off in the open country, creeping as fast as a cloud shadow in a high wind. If only that top pattern could be gotten off from the under one. I mean to try it little by little. काश वो उस वाले पैटर्न को, जो उसके नीचे वाला एक पैटर्न है, उनको जो उसके अंडर वाला उसको उतार सकती है. उसने कोशिश भी की थोड़ी सी उसको उतारने की. I have found out another funny thing, but I shan't tell it this time. It does not do to trust people too much. अब उसे फनी चीजें भी, क्यूरियस भी, स्ट्रेंज भी सिर्फ इसी को नजर आती हैं because she is the victim of that psychological problem. There are only 2 more days to get this paper off, and I believe John is beginning to notice I don't like the look in his eyes. अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं क्योंकि वो 2 दिन के बाद वहां से चले जाएंगे. वो इन 2 दिनों में जॉन को नोटिस नहीं कराना चाहती कि उसके साथ क्या मसला है. And I heard him ask Jenny a lot of professional questions about me. She had a very good report to give. वो से जेनी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है जेनी से उसके बारे में, क्योंकि जो डॉक्टर का काम होता है प्रोफेशनली वे में मरीज की सारी हिस्ट्री को जानना, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको डायग्नोज करना या मेडिकेट करना, तो वो उससे जेनी से पूछता है क्योंकि वो सारा दिन घर होती है और वो उससे ऑब्जर्व करती है. She said I slept a good deal in the daytime, और वो झूठ बोलती है कि वो दिन में अच्छा खासा सो लेती है. John knows I don't sleep very well at night for all I'm so quiet. He asked me all sorts of questions too and pretended to be very loving and kind. And if I couldn't see through him, वो मेरे सामने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है जैसे मुझे पता नहीं कि वो मुझसे सब बहुत कुछ छुपा रहा है.
और ये उससे बहुत कुछ छुपा रही है. I'm getting angry enough to do something desperate. To jump out of the window would be admirable exercise. Am I on the right page? No, it's 23. Still, I don't wonder he acts so. Sleeping under this paper of 3 months, it only interests me, but I feel sure John and Jenny are secretly affected by it. कहती है इस वॉलपेपर से सिर्फ मैं ही अफेक्टेड नहीं हुई, जॉन और जेनी भी इतने ही अफेक्टेड हैं क्योंकि वो खुद भी उन्होंने 3 महीने से इस वॉलपेपर को नोटिस किया है. हुर्रा, दिस इज द लास्ट डे. अब क्योंकि ये जर्नल जो है ना, ये हर हर रोज बंदा लिखता है. उन्होंने इसको शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म दे दी है. ये नहीं कि ये किस डेट का है. अब देखें, हमने पीछे पढ़ा था कि सिर्फ 2 दिन रह गए हैं उसके वहां से जाने में. अभी आज हम अब जब नेक्स्ट पैराग्राफ है तो उसमें आया कि सिर्फ ये आज का डे लास्ट डे है. तो इसका मतलब है कि वो जर्नल डेली लिखती थी, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में उन्होंने डेट डे वो मेंशन नहीं किया हुआ. But it is enough. John is to stay in town overnight and won't be out until this evening. Jenny wanted to sleep with me, the sly thing, but I told her I should undoubtedly rest better for a night all alone. अब उसको वो क्यों सारे इंतजामात कर रही है? क्योंकि वो जॉन जो है वो एक दिन के लिए घर से बाहर है और जेनी उसके साथ सोना चाहती थी ऊपर, लेकिन उसने कहा कि नहीं, वो आज अकेली सोना चाहती है क्योंकि आज उसकी पूरी कोशिश थी कि वो उस वॉलपेपर के पीछे से जो औरत है वो उसको निकाले, वो उस वॉलपेपर को स्ट्रिप ऑफ करे ताकि वो औरत वहां से बाहर आए, वो उसे आजाद करे जाने से पहले. As soon as it was moonlight and that poor thing began to crawl and shake the pattern, I got up and went to help her. जैसे ही रात हुई, उसने फौरन ही वो पैटर्न से जो लेडी थी उसने उसको शेक करना शुरू कर दिया बाहर निकलने के लिए. It's just the imagination of that woman. कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई भी ऐसी वोमन नहीं है जो वहां से बाहर आना चाहती है. I got up and ran to help her. I pulled and she shook. I shook and she pulled. And before morning we had peeled off yards of that paper. सारी रात लगाकर उसने सारे का सारा पेपर रूम में से उखाड़ दिया था. I stripped about as high as my head and half around the room. सिर्फ कितना रह गया था, उसके सर पे थोड़ा सा हिस्सा जो सर वाली साइड पे था वहां से रह गया था और हाफ जो कमरे वाली साइड थी वो रह गई थी. And then when the sun came and that awful pattern began to laugh at me, I declared I would finish it today. क्योंकि उसने हमने पहले भी पढ़ा था, वो कहती है कि जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो ये ज्यादा ऑफुल हो जाता है, ये बिल्कुल ही डिस्गस्टिंग लगने लगता है. तो कहती है जब सुबह हुई तो ऐसे लग रहा था जैसे वो वॉलपेपर उस पे हंस रहा है, तो आज वो उसे सारे को उतार देना चाहती थी. We go away tomorrow and they are moving all my furniture down again to leave things as they were before. वो सारा सामान जो है वो उसको लोड कर रहे हैं जाने के लिए. लास्ट डे जो था वो भी गुजर गया. Jenny looked at the wall in amazement, but I told her merrily that I did it out of pure spite at a vicious thing. Jenny बहुत हैरान थी कि मैंने सारा वॉलपेपर क्यों उतारा है, और मैंने उसे बताया कि मैंने बुराई को खत्म करने के लिए सब कुछ किया. बुराई कौन सी? जो फीमेल उसे वहां पे कैद नजर आ रही है, उसको लगता है कि वो बहुत तकलीफ में है और वो उसे आजाद कर रही है. She laughed and said she wouldn't mind doing it herself. उसे लगा कि इसने सिर्फ किसी एक ख्याल के तहत ऐसा किया, और मजाक में कहती है कि वो भी उसके साथ उतारने के लिए आएगी. जैसे अक्सर मजाक में कह देते हैं कि अगर तुमने ये काम किया तो साथ में तो मुझे भी साथ मिला लेना चाहिए था. लेकिन उसे नहीं पता कि वो जो कर रही है वो हकीकत में खुद को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर का शिकार हो चुकी है. But I must not get tired. How she betrayed herself that time. But I'm here and no person touches this paper but me.
not alive. अब कोई भी उसको वॉलपेपर को इसलिए भी टच नहीं करता क्योंकि किसी का वॉलपेपर से मसला भी नहीं है, उसे लगता है कि वो लेडी जो उसके पीछे है, शी इज नॉट अलाइव एनी मोर. She tried to get me out of the room. It was too patent, but I said it was so quiet and empty and clean now that I believed I would lie down again and sleep all I could, and not to wake me even for dinner. I would call when I woke up. अब उसने प्लान किया कि वो उस कमरे में खुद अकेली सोएगी और तब तक नीचे नहीं आएगी जब तक वो खुद नीचे ना, उसको कोई बुलाने नहीं आएगा और ना वो डिनर के लिए नीचे आएगी. Now she is gone and the servants are gone and the things are gone and there is nothing left but the great bedstead nailed down with the canvas mattress we found on it. सारी चीजें, सारा फर्नीचर घर से उठा के वो ले गए हैं क्योंकि वापस अपने घर जा रहे हैं और सिर्फ वो बेड रह गया क्योंकि वो बेड यहीं की पोजेशन है जहां वो रेंट पे रहने आए थे. We shall sleep it downstairs tonight. We shall sleep downstairs tonight and take the boat home tomorrow. I quite enjoy the room and now it is bare again. Bare mean खाली है सारा. How those children did tear about here. This bedstead is fairly gnawed. Gnawed mean जगह जगह से टूटा हुआ है, चबाया, चबाने, वैसे gnawed चबाने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे gnawed का मतलब है उसको कोई ना कोई चीजें उसके ऊपर मारी हुई हैं जिसकी वजह से वो जगह जगह से टूटा हुआ है. बट आई मस्ट गेट टू वर्क. इसने वही काम करना है. ये काम क्या है कि उसने उस वॉलपेपर को उतारना है. आई हैव लॉक्ड द डोर एंड थ्रोन द की डाउन इनटू द फ्रंट पाथ. आई डोंट वांट टू गो आउट एंड आई डोंट वांट टू हैव एनीबॉडी कम इन. टिल जॉन कम्स आई वांट टू एस्टॉनिश हिम. I have got rope up here that even Jenny did not find. If that woman does get out and tries to get away, I can tie her. वो कह रही है जैसे रस्सी भी एक हाथ में पकड़ लेती है कि वो फीमेल जब यहाँ से बाहर निकलेगी वो उसे बांध देगी. But I forgot I could not reach far without anything to stand on. लेकिन वो दीवार से आगे जो है वो दीवार से आगे उसको खींच ही नहीं सकती थी और वो ये भूल गई थी. This bed will not move. I tried to lift and push it until I was lame, and then I got so angry I bit off a little piece at one corner, but it hurt my teeth. अब उसने पागलों की तरह पूरे कमरे में जिस तरह से हर चीज पे अटैक करना शुरू किया, जिस तरह पागल करते हैं. पहले वो वॉलपेपर को देखती है, फिर वो दीवार की तरफ भागती है, फिर वो उस बेड को जोर से टांग मारती है, फिर उसको चबाने की कोशिश करती है तो उसके अपने ही टीथ जो है वो हर्ट हो जाते हैं, जिस तरह अक्सर पागल करते हैं. इसका मतलब है मुकम्मल तौर पे पागल हो चुकी है. Then I peeled off all the paper I could reach standing on the floor. It sticks horribly and the pattern just enjoys it. All those strangle heads and bulbous eyes and waddling fungus growth just shriek with derision. जितना ज्यादा वो वॉलपेपर को उतारती जा रही थी, उस वॉलपेपर के पीछे जितनी भी औरतों के सर उसे नजर आ रहे थे वो सब चीख रही थी उसकी तरफ, जैसे उसको उसका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि उसने उन्हें वहां से फ्री कर दिया है. I'm getting angry enough to do something desperate. अब पागल बंदा कोई कुछ भी desperate होकर कुछ भी कर लेता है. To jump out of the window would be the admirable exercise, but the bars are too strong even to try. वो वहां से विंडो से नीचे भी कूद जाना चाहती है, लेकिन जो विंडो की बार्स यानी उसको जो ग्रिल लगी हुई है वो उससे वो नीचे निकल नहीं सकती. Besides, I wouldn't do it, of course not. I know well enough that a step like that is improper and might be misconstrued. गलत समझा जाएगा इसको अगर वो यहाँ से नीचे जंप कर जाएगी तो. I don't like to look out of the windows even. There are so many of those creeping women, and they creep so fast. I wonder if they all come out of that wallpaper as I did. मैं भी तो कह रही है वॉलपेपर से बाहर आ ही गई ना, इन्हें भी आ जाना चाहिए.
But I am securely fastened now by my well-hidden rope. You don't get me out in the road there. लेकिन उसने हाथ में रोप पकड़ी हुई है कि वो उनमें से किसी भी औरत को जो बाहर निकलेगी उनको रोड तक भागने नहीं देगी. It is so pleasant to be out in this great room and creep around as I please. अब वो क्या कर रही है? अब वो पूरे रूम में रेंग रही है जिस तरह से वो औरत रेंगती हुई नजर आती है, पागलों की तरह बिखरे हुए बाल हैं. I don't want to go outside. I won't, even if Jenny asked me to. For outside, you have to creep on the ground, and everything is green instead of yellow. अब उसे क्यों रूम का जो फ्लोर है वो ग्रीन लग रहा है? क्योंकि येलो कलर से तो वो ऑलरेडी नफरत करती है. ग्रीन कलर क्या है? ग्रीन कलर इज अ सिंबल ऑफ फ्रेशनेस, लाइवलीनेस एंड होप. तो उसे कहीं ना कहीं उम्मीद है यहाँ कि वो उस औरत को उस वॉलपेपर से बाहर निकाल लेगी. But here I can creep smoothly on the floor, and my shoulder just fits in that long smooch around the wall, so I cannot lose my way. Why, there is John at the door. It is no use, young man. You can't open it. अब उसने दरवाजा बंद किया हुआ है, वो खुद अंदर रेंग रही है और उसका हस्बैंड बाहर से दरवाजा नॉक कर रहा है कि वो दरवाजा खोले, लेकिन वो अंदर ही कह रही है कि तुम इसे नहीं खोल सकते. How he does call and pound. वो मुक्के मार रहा है दरवाजे पर. Now he is crying for an axe. अब वो चिल्ला रहा है कि कोई एक्स लेकर आओ ताकि वो दरवाजा ही काट दे. It would be a shame to break down that beautiful door. John dear, said I in the gentlest voice, the key is down by the front steps under a plantain leaf. नीचे जो स्टेयर्स के पास जो वॉज पड़ा हुआ है उसके लीफ के पास है की. हालांकि दरवाजा उसने अंदर से बंद किया हुआ है और उससे क्या कह रही है, क्योंकि वो दरवाजा दोनों तरफ से खुल जाता है ना, बाहर से भी और अंदर से भी. That silenced him for a few moments. कुछ लम्हे के लिए तो वो चुप हो गया क्योंकि वो नीचे कीज लेने गया हुआ था. Then he said very quietly indeed, open the door, my darling. I can't, said I. The key is down by the front door under a plantain leaf. And then I said it again several times, very gently and slowly, and said it so often that he had to go and see, and he got it, of course, and came in. He stopped short by the door. What is the matter? He cried. For God's sake, what are you doing? I kept on creeping just the same. बजाय जवाब देने के वो उसी तरह फ्लोर पे रेंग रही थी. But I looked at him over my shoulder. जिस तरह अचानक कोई बदरू देखती है ऊपर अपने, उसने उस तरह उसे देखा. I have got out at last. आखिरकार मैं उस वॉलपेपर से बाहर निकल आई. अब उसके हस्बैंड को लगा कि इसमें कोई भूत आ गया, ये उस वॉलपेपर से बाहर जो है उसमें वाकई कुछ होगा और जो है वो वहां से बाहर आकर इसके अंदर कोई भूत है. Said I, in spite of you and Jenny, and I have pulled off most of the paper, so you can't put me back. तुम्हारे और जेनी की मदद के बगैर मैं उस वॉलपेपर से बाहर निकल आई और मैंने सारा वॉलपेपर उतार दिया है ताकि दोबारा तुम दोनों मुझे उसके पीछे ना धकेल सको. Now why should that man have fainted? अब ये क्यों बेहोश हो गया? But he did, and right across my path by the wall, so that I had to creep over him every time. वो बेहोश होके गिर गया उसका हस्बैंड और वो उसे कह रही है कि ये मेरा रास्ता रोके हुए क्योंकि मुझे भी रेंगना है और रेंग के दीवार के पास जाना है. उसे ये कोई फिक्र नहीं है कि उसका हस्बैंड फेंटेड है. क्यों फिक्र नहीं है? क्योंकि वो होश में ही नहीं है. उसे यही नहीं पता है कि जो डोर है या वो बेहोश हुआ है तो किस वजह से हुआ है और वो उसी तरह फ्लोर पे रेंग रही है. दैट्स इट. समझ आई कोई? यस मैम. मैम आपने जब स्टोरी का इंट्रोडक्शन बताया था उसमें बताया था कि उसका सेकंड हस्बैंड भी था और वो फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो वो स्टोरी में क्यों नहीं बताया? वो ये स्टोरी फिक्शन स्टोरीज हैं और फिक्शन के अंदर रियलिटी और जो फिक्शन होता है रियलिटी का और इमेजिनेशन का दोनों का रोल होता है.
आप सेम टू सेम अगर अपनी वही लाइफ हिस्ट्री लिख देंगे तो फिर बहुत सारे लोग उसको मुकम्मल तौर पे उनकी लाइफ उस बंदे की लाइफ पे रख के परखना शुरू कर देते हैं। इवन ऐसे भी होता है सम टाइम कि जो बंदा इस तरह अपनी डेथ से पहले अपनी इस तरह की स्टोरी लिख जाता है तो जिंदा बच जाने वाले बहुत सारे लोग मीडिया के शिकंजे में आ जाते हैं। लोग उन पे इल्जाम लगाने लगते हैं कि इसकी वजह से डेथ हुई है। तो लिखने वाला सेम टू सेम हर चीज लिख के नहीं जाता। हर स्टोरी लिखना या हर बात लिखना जरूरी नहीं थी। वैसे भी शॉर्ट स्टोरी है, अगर ये अपने दूसरे हस्बैंड का जिक्र करती तो शायद एक शॉर्ट स्टोरी और लिखनी पड़े, इसलिए